Yes, mute yourself. Next up, launch transient time devices, Varit diode. Before this, we have discussed about impact and trapper diode. Yes, ma'am. Yes, In ma'am. which impact diode, impact ionization and avalanche effect is used. And in trapet, yes, Ma'am, जिसमें प्लाज्मा को हम plasma, trapping of the Trap. plasma is used. Yes, First ma'am. is formation, then trapping, and then the extraction of the plasma. Now third one is Barrett. That is a barrier injection transient time device. Now what do you mean by injection? Injection क्या होगी इसमें? It works on the principle of thermoionic emission. All of you know what is thermoionic emission? Yes, ma'am. क्या होती है thermoionic emission? मैम इट्स विद टेम्परेचर मैम जैसे टेम्परेचर इफेक्ट होगा इसमें जिसकी वजह से मैम इलेक्ट्रॉन्स और होल की मूवमेंट होगी Electrons or holes की जिसमें movement आयन होगी. बने Okay. And second, when large amount of external energy like in the form of heat is supplied to free electrons, तो और ज्यादा charge carriers emit होंगे. That is called as thermoionic emission. So this Barrett diode based on thermoionic emission. Please note down this point. Done. यस मैम Second is this Barrett diode is the latest invention of IMPET family. Now IMPET में क्या था? That uses long drift regions and second is impact ionization. Due to this impact diode noise is high. Phase noise उसमें ज्यादा होती थी. यस मैम That is the main ma'am. disadvantage of impact diode. And second, avalanche region पे work करता था. Trapet also works on avalanche region in which the plasma formation occurs. फिर trapping होती थी. यस Yes. ma'am. But in this, carrier injection is caused by forward bias junction, not from the plasma of avalanche region as in them. Avalanche means reverse biased. Now you can see here it's a forward biasing, that is positive, negative. This one is your emitter, collector और ये आपका बेस है. और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो N टाइप सेमीकंडक्टर is yes, क्या है इसमें? Larger than both p type. यस मैम Yes, ma'am. Now in this, instead of impact ionization or trapped plasma, एक effect होगा that is punch through. Any one of you can tell me what is punch through? पढ़ा होगा आपने No. ट्रांजिस्टर्स में, एम्पलीफायर्स में. नो मैम सुना भी नहीं है. नो मैम Punch through. Punch means जिसमें कुछ yes. Yes, any one of you. Lead students. I'm audible. यस ma'am. मैम ऑडिबल हाँ जी. Punch means yes. Please respond. जो भी पता है punch means मैम किसी को मारना पंच okay. जब आप मारते हो क्या होता है? जब हम एक को मारेंगे वो पीछे जाएगा. यस मैम अब यहाँ पे पंच थ्रू किसका होगा? चार्ज कैरियर्स में. कैरियर Yes. इंजेक्शन तब भी होगी. आपने ma'am. ड्रिफ्ट डिफ्यूजन पढ़ी है. यस मैम Okay. Now write down what do you mean by punch through?
When emitter to collector breakdown, which can occur in a junction, emitter to collector breakdown, which can occur in a junction with very narrow base region, at sufficiently high collector voltage, when the space charge layer, space charge means charge carriers layer, extends completely across the base region. क्लियर है? क्या होगा? बेस रीजन जो आपका है वो नैरो है, इस साइड आपके Yes. होल्स है, इधर इलेक्ट्रॉन्स है. जब पंच थ्रू इफेक्ट होगा, यहाँ से चार्ज कैरियर इस बेस रीजन में कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड सेकंड जो होल्स है वो कलेक्टर साइड कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि पी है. Yes. तो अगर ये डिप्लीशन रीजन है, इनके एंड्स में ये एजेस पे पंच थ्रू इफेक्ट होगा, तो डिप्लीशन रीजन में से चार्ज कैरियर्स इंजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे. इंजेक्ट Yes, मींस ma'am. रिमूव होना. Yes, ma'am. Are you getting my what is punch through? Yes. Now see what will happen in this. First is positive resistance effect occurs in this. हम जितने भी हमने पढ़े डायोड, शॉर्टकी बैरियर टनल, बैरेक्टर, पिन डायोड, गन डायोड, आफ्टर दिस अवलांच, इम्पैक्ट, ट्रैपेट, सभी भी हमने शो किया नेगेटिव रेजिस्टेंस इफेक्ट. क्यों? क्योंकि वो रिवर्स बाइसिंग में करते थे वर्क. नाउ इन दिस ये फॉरवर्ड बाइसिंग है. दैट मींस इन दिस अब क्या होगा? पॉजिटिव रेजिस्टेंस इफेक्ट शो होगा. Yes, ma'am. अगर इसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस इफेक्ट भी अकर करेगा, दिस वन इज योर नेगेटिव रेजिस्टेंस इफेक्ट, बट करंट किस पे आ रहा है? पॉजिटिव रेजिस्टेंस पे. वोल्टेज भी पॉजिटिव पे ही आई. यस. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब कैसे होगा? दिस इज अ MNM semiconductor material or a varied diode, that is MNM. आपकी बुक में लिखा होगा MNM, मेटल, एन टाइप मेटल. अब इसमें क्या है? इट्स अ वेरिड, मेनली आपने एवर्स मॉल मॉडल पढ़ा है इन ईडी, एवर्स मॉल मॉडल, Yes, Yes, ma'am. जिसमें 2 डायोड्स बैक टू बैक लगे होते थे. Yes. Yes, In ma'am. similar way, varied diode is a 2-terminal 3-layer device. 3-layer is MNM, and in this it has a MNM structure. Basically it consists of 2 back-to-back diodes. It can be a PN or N type. अब इसमें एक मेटल भी हो सकती है और एक सेमीकंडक्टर भी. अब हमने यहाँ पे ये मेटल लिया और ये एक सेमीकंडक्टर यूज किया, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर हैं. यहाँ पे आप हम चेक करें तो पी टाइप, एन टाइप सिलिकॉन वेफर, एंड फिर पी टाइप. क्लियर है? दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ वेरिड डायोड. अब इसमें ये अमीटर है, दिस वन इज योर कलेक्टर. अब जब नेगेटिव रेजिस्टेंस obtain करनी होगी, तो ड्रिफ्ट ऑफ द इंजेक्टेड होल्स टू द कलेक्टर एंड ऑफ द डायोड. जो होल्स इंजेक्ट होंगे वो कलेक्टर साइड होंगे, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एन टाइप में कलेक्ट होंगे. क्लियर है? होल्स आर इंजेक्टेड टुवर्ड्स पी टाइप, दैट इज पी टाइप मटेरियल, और वी कैन से कलेक्टर एंड ऑफ द डायोड, and electrons are injected in n type, that is your base region. Done. And this one is your drifting region. ये ड्रिफ्टिंग रीजन है. हम फॉरवर्ड वाइसिंग यहाँ पे दे रहे हैं. जब मैंने यहाँ मेटल और एन टाइप लिया तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. इसकी ये थी कंस्ट्रक्शन. और यस, एनी क्वेश्चन? No, ma'am. No, ma'am. Okay. And second,
when the voltage is increased till the edges of the depletion region, a condition occurs. That condition is called as punch through. जो हमने अभी पढ़ा कि पंच थ्रू है क्या. अब इसमें एन टाइप रीजन जो है that is larger than both p type. सो पंच थ्रू इफेक्ट कब अक्कर करेगा? बिटवीन दीज टू रीजन आएगा. इन दोनों रीजन्स के बीच में जो इफेक्ट होगा, जो मैं ये शो कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड पंच थ्रू इफेक्ट. पंच थ्रू इफेक्ट मींस जब हम पंच करेंगे, आप जैसे बोल रहे हो कि क्या होगा, इंजेक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी. किसकी? कैरियर्स. बैरियर इंजेक्शन. तो जो बैरियर था वो अगर उसे हमने पंच किया, वो ब्रेक हो गया, तो आपकी जो मूवमेंट है वो होनी स्टार्ट हो जाएगी. इज दैट क्लियर? Yes, व्हाट इज ma'am. पंच थ्रू? तो आपके जो ये बेस रीजन है, इसमें कैरियर्स आना स्टार्ट हो गए. जो मेरे होल्स हैं वो इस साइड जाना स्टार्ट हो गए. That is called as thermoionic emission or Barrett diode. Done? Yes, ma'am. In this, emitter is connected to positive terminal and collector is connected to the negative terminal. You can see here. And in the forward biasing, emitter base junction will be forward bias होता है and collector base junction जो है वो reverse bias होता है. और ये जो बैरिट डायोड है, ये कितनी फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है? राइट डाउन. फॉर सिलिकॉन it operates on 25 gigahertz, and for gallium arsenide it's 90 gigahertz. That is the operating frequency range of Barrett diode. 25 gigahertz for silicon and 90 gigahertz for gallium arsenide. Clear है? Yes, ma'am. Now next is the voltage or current characteristic. हम current मैम जो ऊपर वाला ग्राफ, जो मैम ऊपर वाला डायग्राम था मैम, यहाँ पे मैम मेटल में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों प्रेजेंट होंगे ना? इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे मेटल में, मैम ओनली होल्स होंगे. होल्स होंगे. तभी उसे हमने. माइनॉरिटी कैरियर्स भी नहीं होंगे? हाँ जी, मैम माइनॉरिटी कैरियर्स भी नहीं होंगे, जैसे मैम एन टाइप में हमने holes शॉर्ट होंगे की ना? बैरियर डायोड पढ़ा था. यस मैम. तो उसमें कौन सा हमने यूज किया था मेटल के साथ? एक साइड मेटल लगाई थी, दूसरी टाइप एन टाइप था. यस मैम. रिमेम्बर? सिमिलर यहाँ पे भी वही है, तभी यहाँ नेगेटिव लगाया. ओके मैम. नाउ नेक्स्ट, दिस वन इज योर टर्मिनल वोल्टेज जो डीसी पे शो हो रही है. दैट इज, दिस इज योर पंच थ्रू वोल्टेज. नाउ इन दिस, जब हम डिवाइस को वोल्टेज अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप कब होगा? जब रिवर्स बायसिंग होगी. एंड दिस वोल्टेज इज फर्दर इंक्रीज्ड टिल द एंड ऑफ द डिप्लीशन रीजन. जो हमने लेयर्स के टिल एजेस पे बात करी थी, वोल्टेज वहां तक इंक्रीज होगी. यस. Yes, ma'am. जब पंच थ्रू होगा, अक्कर्स होगा, तो वो वोल्टेज कम होनी स्टार्ट होगी. दैट्स व्हाई Yes. दिस बीपीटी इज कॉल्ड एज पंच थ्रू वोल्टेज. क्लियर है? Yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट इज, नाउ योर डिप्लीशन रीजन इज फ्री ऑफ चार्जेस. डिप्लीशन रीजन से सारे कैरियर तो इंजेक्ट हो गए, तो जो डिप्लीशन रीजन है दैट इज फ्री ऑफ चार्जेस. यस और नो? मैम रिपीट करना है ये वाला पॉइंट? जब पंच थ्रू हुआ, कैरियर इंजेक्ट होना स्टार्ट हो गए, यस मैम. तो जो डिप्लीशन रीजन है उसमें कैरियर्स कम होना स्टार्ट हो गए. यस. मैंने कहा कि डिप्लीशन रीजन इज फ्री ऑफ चार्जेस, यस मैम. so that punch through of the charge carriers happens, कि punch through effect condition occur कर जाए. But in this, Yes, ma'am. avalanche condition does not take place. Yes. So after the charge carriers are injected, it travels to the base with some velocity. हमने ये बोला कि वो बेस की साइड जाते हैं. That effect is called as punch through effect. Yes, ma'am. बेस रीजन मेरा स्मॉल है एज कंपेयर टू योर कलेक्टर एंड एमिटर. उस बेस रीजन में हमारे यहाँ पे हमने चेक किया था अभी डायग्राम में कि वहां चले गए थे, एंड जो आपके होल्स थे वो पी टाइप में चले गए, Yes, ma'am. क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल की पेयरिंग ही हमारी थर्मोआयनिक एमिशन थी, जिसमें आयंस जनरेट हो रहे थे.
तो वो कब हुआ है? जब यहाँ पे मेरी वोल्टेज ज्यादा थी, और उस केस पे जब वोल्टेज होगी दैट इज योर इंजेक्शन करंट भी उतना होगा, पॉजिटिव पे Yes. होगा। जब नेगेटिव होगा, नेगेटिव पे करंट नहीं होगा। तो वोल्टेज और करंट बोथ आर इन फेस हो गए। अब Yes, ma'am. दिस वोल्टेज और करंट जब बोथ आर इन फेस दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव रेजिस्टेंस। ये मतलब, Yes. तो ये आपका पॉजिटिव रेजिस्टेंस है। और जहां पे ये करंट नेगेटिव हो रहा है दैट इज नेगेटिव रेजिस्टेंस। मैम नेगेटिव रेजिस्टेंस में आउट ऑफ फेज होंगे। आउट ऑफ फेस। ये रहो, आपके Okay. वोल्टेज यहाँ पे पॉजिटिव है, करंट में ऐसे अगर बना दो, ठीक है मैम। क्लियर है? मैम दैट इज, पॉजिटिव और नेगेटिव रेजिस्टेंस दोनों ही आ रही है? मैं शो की है दोनों, कि ये वाली पॉजिटिव है हमारी, पॉजिटिव भी है। जब मैं ये वाली डायग्राम दे रही हूँ नेगेटिव भी है। वेट, नेगेटिव रेजिस्टेंस कब ऑब्टेन होगी? ड्रिफ्टिंग ऑफ द इंजेक्टेड होल्स टू द कलेक्टर एंड ऑफ द डायोड। जब आपके होल्स कलेक्टर की साइड पे जाएंगे और हमारे जो बेस रीजन है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ये दैट इज योर बेस रीजन, दिस वन इज योर कलेक्टर। क्लियर है? मैम मैम हाँ मीन्स जी, मैम मैम वैसे दोनों हो ये रही है? नेगेटिव पे काम नहीं करेगा ना, पॉजिटिव पर ही करेगा काम। पॉजिटिव फॉरवर्ड बाइसिंग में वर्क कर रहा है ये वैरिड डायोड, दैट डज नॉट ओके अकर इन मैम। अवलांच रीजन। तो ये वाली मेरी वोल्टेज है इस पॉइंट पे, ये रही पॉजिटिव रेजिस्टेंस। ओके मैम। क्लियर है? यस। You can note down one point here. Microwave oscillations take place. Microwave oscillation takes place due to thermoionic emission and diffusion of minority carriers. Diffusion of minority carriers across the forward biased barrier or condition. Clear है अब? मैम मिनॉरिटी मैम कैरियर रिपीट करना। And diffusion of minority carriers across the forward biased barrier or condition. Forward biasing में minority carriers की diffusion हो रही है। क्लियर है अब सौरभ? यही पॉइंट था। यस मैम। तो उसके बाद हमने पढ़ा MNM स्ट्रक्चर। एंड मेन एडवांटेज इसकी क्या है? इसमें नॉइज कम होगी। क्यों? क्योंकि हम इम्पैक्ट आयोनाइजेशन इफेक्ट यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि इम्पैक्ट डायोड में नॉइज कब ज्यादा होती थी? जब हम इम्पैक्ट आयोनाइजेशन यूज करते थे। तो जो बैरिड डायोड्स हैं वो लेस नॉइसी होते हैं एज कंपेयर टू इम्पैक्ट डायोड। बट वन डिसएडवांटेज इज देयर ऑफ बैरिड डायोड, दैट इज नैरो बैंडविड्थ। जो इसकी बैंडविड्थ होती है वो नैरो होती है। एंड पावर आउटपुट लिमिटेशन इज देयर। जब हमने इम्पैक्ट डायोड किया था हमने बोला था उसकी पावर कैपेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, ऑफन 10 वोल्ट्स देन एज कंपेयर टू अदर डिवाइसेस। बट इसमें जो पावर आउटपुट है वो कम है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली मिलीवॉट्स में होती है। दैट इज द मेन डिसएडवांटेज। लिख लो, फर्स्ट इज नैरो बैंडविड्थ एंड सेकेंड वन इज power output limitation. Done? यस मैम। Any other question? एक रह गया आपका this one. सेकंड क्या थी? पावर आउटपुट Limitation. Few milliwatts में होती है पावर। ठीक है। ये था जो आपके ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जहां पे देखो एन टाइप में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहाँ पे चार्ज कैरियर्स उतने ही ज्यादा है। उसी कैरियर्स को हमने इंजेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ थर्मोआयनिक एमिशन, फॉरवर्ड बाइसिंग अप्लाई करके। ठीक है? ओके मैम। नाउ एप्लीकेशंस क्या है? वल्गर अलार्म्स में यूज होता है एज एन ऑसिलेटर, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफिकेशंस के लिए। जितनी भी हमने डिवाइसेस करी दैट इज एक्ट एज एन एम्पलीफायर और ऑसिलेटर, जनरेटर की तरह कैसे काम कर रही है। तो दीज आर द एप्लीकेशंस। क्लियर है?
Yes, ma'am. Now last topic of this unit is measure. Have you already studied about laser? पढ़ लिया होगा आपने ऑप्टिकल में? नहीं मैम, अभी करना है। अभी लेजर भी नहीं किया? मैम बैरिड आउट की एडवांटेजेस क्या हैं? किसकी? बैरिड की मैम। वेरिड की डिसएडवांटेज है नैरो बैंडविड्थ। मैम एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है? लेस नॉइस, लेस नॉइसी एज कंपेयर टू इम्पैक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें इम्पैक्ट आयनाइजेशन नहीं यूज हो रही, अवलांच रीजन नहीं यूज हो रहा। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी। लेजर पढ़ लिया आपने? नो मैम। वैसे सुना है किसी ने फिजिक्स में लेजर पढ़ा क्या था होता है? यस मैम। क्या होता है? मैम लाइट एम्प्लीफिकेशन व स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन, ओके। स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होती है? मतलब कि मैम उसको बड़ा स्टिमुलेट कर देते हैं, मतलब कि एक स्टिमुलेट कैसे करते हैं? ये प्रोसेस नहीं हाँ पता जी, यस लेट स्टूडेंट्स। मैम, प्रोसेस नहीं पता। मैम थ्रू एम्प्लीफिकेशन। थ्रू एम्प्लीफिकेशन, ओके। व्हाट डू यू मीन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन? आपने सुना होगा, आपने 12th 11th 12th में पढ़ी होगी फिजिक्स में, लेजर पढ़ी है कि नहीं? ऑप्टिकल मैम अप्लाइड साइंस में पढ़ी थी। पढ़ी थी ना वहां पे। हाँ, उसमें फिजिक्स में भी आपने करी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक Yes, ma'am. फिजिक्स में। स्टिमुलेटेड एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, यस मैम। हैव यू हर्ड पढ़ा ऑल था दीज वर्ड्स कि सुने ही है? Yes, मैम, ma'am. पढ़ा चलो ठीक है। याद है, पढ़ा नाउ था। नेक्स्ट इज मेजर, दैट इज अ टाइप ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। नोट डाउन कर लो। ऑल्सो कॉल्ड क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। आई एम राइटिंग हियर क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अभी हमने पढ़ी अवलांच, यस, ट्रांसिएंट टाइम डिवाइसेस। अब नेक्स्ट है Yes. क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, दैट इज आल्सो that works on the stimulated emission principle. अब इसके अंदर दो टाइप्स आती हैं, फर्स्ट इज लेजर एंड सेकेंड इज मेजर। Measure as microwave amplification by the stimulated emission of radiation. Laser as light amplification by stimulated emission of radiation. These are the two examples of the stimulated emission devices or quantum electronic devices. Clear है? Yes, ma'am. अब ये जो डिवाइसेस हैं इसका एनालिसिस कैसे हो सकता है? ओनली बाय क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स। हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, हमने पढ़ा है ये भी कहीं पे, अगर याद हो तो। ईडी में पढ़ा था। किसमें? ईडी में था। ईडी में शुरुआत फर्स्ट में। टॉपिक दैट इज रिव्यू ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। यस मैम। ठीक है, नाउ फर्स्ट है माइक्रोवेव, है एक वर्ड डिवीजर में, फिर एम्प्लीफिकेशन, देन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। रेडिएशंस आपको पता है? यस, आई एम ऑडिबल। यस मैम। रेडिएशंस Yes, ma'am. यस, कलेक्शन ऑफ रेज। मैक्सिमम, यस मैम। यस, और okay, now I'm talking about measure. Measure as a just like a laser. लेजर में क्या हो रही है? लाइट एम्प्लीफिकेशन होगी। लाइट एम्प्लीफिकेशन कब होगी? जब हम कोई एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तभी आपके एटम्स लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी जाएंगे, और वी कैन से हायर से लोअर से फिर बैक आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड री एमिशन। Yes, ma'am. यस अगर मैम। मैं कह रही हूँ कि मैं अपने कोई एटम्स को या इलेक्ट्रॉन्स को कुछ भी मैं यहां से यहां भेजना चाहती हूँ, दैट इज लो लेवल टू हाई लेवल, टॉप लेवल तक जा रहे हैं, फिर वहां से फिर बैक आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड री एमिशन। Yes.
That means maser is a process for converting the atomic energy into electromagnetic energy. ये रेडिएशंस Yes, की ma'am. फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, दैट इज कॉल्ड वेव्स. Hence microwave amplification stimulated emission of radiation, that is maser, also referred as, write down, molecular मैम yes, रिपीट करना. that's why maser also referred as molecular amplification by stimulated emission of radiation. माइक्रोवेव की जगह पे वर्ड क्या आ गया, मेजर. वाई? क्योंकि ये एटॉमिक एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है. क्लियर है? ओके मैम. ठीक है. दीज डिवाइसेस आर हाईली डायरेक्शनल. आप सुन लो, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी. हाईली डायरेक्शनल कोहेरेंट पावर डिवाइसेस होती हैं. आपने वर्ड सुना है मोनोक्रोमेटिक? यस ma'am. मैम. क्या होता है? मोनो मीन्स वन, क्रोमेटिक मीन्स कलर. Yes, ma'am. कलर. यस. Yes, ma'am. ठीक है. अब कलर मीन्स मोनोक्रोमेटिक, वन कलर मीन्स, सिंगल कलर मीन्स कि फ्रीक्वेंसी एक ही पे जा रहे हैं. अभी मैंने बोला कि हमारे लो एनर्जी से हाई एनर्जी, यहां से यहां जा रहे हैं मेरे इलेक्ट्रॉन्स या कुछ भी कैरियर्स, तो उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी. यस मैम. Yes, The ma'am. light has a longer wavelength and less energy than the visual light emitted by laser. Now amplification कैसे होगी? That is called as stimulated emission. अब stimulated emission क्या है? ये रहा. Wait. See here. When ये इलेक्ट्रॉन है, when it moves from lower energy level to higher energy level, कब गया? When जब मैंने कोई एनर्जी प्रोवाइड करी इसे, यस मैम. Yes, that ma'am. is called pumping. इस सबको बोलते हैं पंपिंग. हमने पंप किया विद द हेल्प ऑफ सम एनर्जी, और हमने कुछ एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड की, तभी ये मेरा लोअर एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे रेज हो गया. आफ्टर दिस, अब स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है? फर्स्ट होती है स्टिमुलेटेड एमिशन. स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है? जिसमें मेरा एक फोटोन या एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है. इंटरेक्ट इन द सेंस ऑफ कि उनकी जो डायरेक्शन है वो भी सेम होगी, उनका फेस वो भी सेम हो रहा है. जैसे ये वाला है फर्स्ट, ये फिर यहाँ आया, ये भी, ये थर्ड इसके पीछे जा रहा है, ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यस मैम. फेस भी इनका सेम है. Yes. That is called stimulated emission. Done? यस. Clear है? That's why maser and laser are highly directional coherent power devices. अब spontaneous emission क्या है? कि randomly order में फोटोन कहीं पे भी जा रहा है. अब इसकी डायरेक्शन और फेस इज नॉट सेम. That is called spontaneous emission. Clear है? What is pumping? Pumping means just excitation देनी. Clear है? अब हमने लैपटॉप Yes, को ma'am. चार्ज Yes, करना है, ma'am. जब तक आप चार्जिंग के लिए उसे स्विच ही नहीं ऑन करेंगे चार्जिंग नहीं होगी. हमने कोई एनर्जी सप्लाई करी तभी उसकी चार्जिंग स्टार्ट हुई. क्लियर है? यस. Yes, ma'am. दैट इज कॉल्ड पंपिंग, एक्साइटेशन, कि हमने कोई एनर्जी प्रोवाइड की तभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया. दैट इज कॉल्ड पंपिंग एंड दिस इज स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन. नाउ वन more question is there, that is called population inversion. अब population inversion क्या है? ये रहा. अब फर्स्ट फिगर में देखो, लो एनर्जी पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, फोटॉन्स जो भी है. अब वो हाई पे एक है. यस, ये नॉर्मल पॉपुलेशन हो रही है. Yes, ma'am. पॉपुलेशन इन्वर्जन मींस जब मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आपके हाई एनर्जी स्टेट पे ही हो और लो एनर्जी स्टेट पे ना हो, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन. अब हाई टॉप लेवल पे देखो एनर्जी भी ज्यादा है क्योंकि वहां पे फोटॉन्स ज्यादा है. अब लो पे कम है, इनबैलेंस आ गई, अनस्टेबल स्टेट्स होगी.
Yes, ma'am. That is Yes, called ma'am. population inversion. क्लियर है? अब जो हम कह रहे हैं कि लो टू Yes. हाई जा रहे हैं या हाई टू बैक आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड री एमिशन। वो किस पे लाई करते हैं? दैट इज कॉल्ड वेव मैकेनिकल इक्वेशन, हमने पढ़ी हुई है। E इज इक्वल टू एच एफ, कई म्यू भी बोलते हैं। F is the frequency of the incident photon, H is your Planck's constant, and E is the energy difference between two levels. That is called energy. That is the difference between two levels. Clear है? Yes, ma'am. That is your मेजर। अब मेजर में टू टाइप्स होती हैं, एक होता है रूबी लेजर एंड सेकेंड इज TWM लेजर, दैट इज ट्रेवलिंग वेव मेजर। अब रूबी लेजर क्या है? इसमें कौन कौन सी गैसेस यूज करते हैं? सॉलिड्स लिख लो। फर्स्ट इज अमोनिया, सेकेंड इज हाइड्रोजन, लिख लिया? Yes, ma'am. फर्स्ट वन कौन सी लिखी है आपने? अमोनिया, हाइड्रोजन, सिलिकॉन। और उसके अंदर ही टू टाइप्स आती हैं, रूबी लेजर एंड सेकेंड वन इज TWN। अब इसमें क्या है, यहाँ पे देखो क्या होगा, जब आप इनपुट कैविटी पे कोई इनपुट प्रोवाइड करेंगे, पंप करेंगे, पंप मींस इन द सेंस ऑफ मैंने जब कोई एनर्जी दी तो क्या होगा, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं रूबी लेजर में वो मूव करेंगे फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। यस, Yes, ma'am. Yes, ma'am. जब लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, ये मैंने मान लो फोटोन दिया, कुछ भी एनर्जी प्रोवाइड की यहाँ पे इनपुट पे, लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल मेरे क्या हो गए? यस, मूव हो गए। Electron. जब मूव हुए दैट इफेक्ट इज कॉल्ड पंपिंग, हमने पंप किया तभी हुआ। Yes, Yes. ma'am. अब उसपे सिमुलेटेड एमिशन कब होगी? जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम फेस में होंगे, तभी होगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. दैट इज कॉल्ड रूबी लेजर। इसका ये स्ट्रक्चर है, ये रहा। Now read this point. When the pump input is provided to the cavity, the electron in the ruby laser moves from lower to higher, and the population inversion take place. कब? जब वही इलेक्ट्रॉन्स दोबारा फिर से हाई से लो में आ रहे हैं, that is called re-emission of the electrons. अब जब emission स्टार्ट होगी, जा रही emission हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, वो एक फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करेंगे, उससे आपकी एम्पलीफिकेशन हो जाएगी माइक्रोवेव की। मेन पर्पस इज माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। यही था हमारा टॉपिक। Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्लियर है? अब TWM में कैसे है? TWM में हम इनपुट देते हैं ट्रेवलिंग वेव में। प्लीज वेट। इसमें भी वही है, ये यहाँ इनपुट देंगे, जब इनपुट मिलेगी तो आके इलेक्ट्रॉन्स लोअर से हायर में जाएंगे, फिर पॉपुलेशन इन्वर्जन होगी एट द सेम फ्रिक्वेंसी, आपके फिर से बैक आ जाएंगे वो लोअर बैंड। ड्यूरिंग दिस टाइम दे emit the photons which generate the microwave frequency. प्रिंसिपल इज सेम इन बोथ द केसेस, क्योंकि ये है ही मेजर वर्क किस पे करता है? माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। क्लियर है? नाउ यहाँ पे क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन इन्वर्जन? इसमें भी और आपके ऑप्टिकल में भी यही क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन? क्लियर है? Yes, ma'am. अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? ये तो टाइप्स थी इसकी। these are the uses of कहाँ सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, एयर टू एयर कम्युनिकेशन, रडार टेलीस्कोप टेक्नोलॉजी में यूज होता है, एज एन एम्पलीफायर, एज एन ऑसिलेटर, इन माइक्रोवेव कंपोनेंट्स में से यूज कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट मेजर। नाउ इफ एनी क्वेश्चन इज देयर देन टेल मी। No, ma'am. यहाँ पे आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होगी। Okay, ma'am. ठीक है? मैम Ma'am, पॉपुलेशन notes. इन्वर्जन वही होता है ना जिसमें सारे हाँ जी, इलेक्ट्रॉन्स हायर स्टेट में हो और लोअर स्टेट में कोई ना हो। दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन।
ओके मैम। ठीक है, और मैम ये लिंक कर देना हाँ सेंड। वो सेंड कर देती हूँ। एक और इसमें, जब ये टॉप लेवल है, ये हाई लेवल है, यहाँ से यहाँ जाना हो, जब बैक लेके आना हो, इनके बीच में हम एक मेटास्टेबल स्टेट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट स्टेट्स। मेटास्टेबल स्टेट्स जिसे बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट्स, दैट इज टॉप लेवल, दिस इज योर लो लेवल, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड लेवल। उनके बीच में जो इंटरमीडिएट स्टेट्स होती हैं उसे बोलते हैं मेटास्टेबल स्टेट्स। नोट कर लो पॉइंट। In between the top level and lower level or ground level, there is a state that is called intermediate level or metastable state. Clear है? यस मैम। Yes, Any ma'am. other question?